بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. یہ ہے آپ کے اسکرین پر آسان نحو جلد اول کا تیسرا سبق. اس سبق میں ہم انشاءاللہ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم عبارت خوانی کریں گے یعنی ریڈنگ کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ ہے آپ کے اسکرین پر جو پیج دکھائی دے رہا ہے تیسرا سبق. مرکب وہ بات ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے. مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. مرکب مفید وہ بات ہے جس سے سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو. جیسے حسن حاضر، حسن موجود ہے. ائت بالماء، پانی لاؤ. پہلے جملے سے سامع کو حسن کے موجود ہونے کی اطلاع اور دوسرے جملے سے پانی کی خواہش معلوم ہوتی ہے. فائدہ: مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. مرکب غیر مفید وہ بات ہے جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو. جیسے قلم سعید، سعید کا پن. آپ کو شاید یاد ہے ہم سبق نمبر 1 میں ایک چیز پڑھے تھے، لفظ موضوع اور محمل. موضوع اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے کوئی معنی ہو، اور اس وقت ہم پڑھے تھے لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور کلمے کی 3 قسمیں پڑھے تھے، اسم، فعل اور حرف. موضوع کی 2 قسمیں پڑھے تھے نا ہم، مفرد اور مرکب. تو پہلے لیسن میں مفرد کی تعریف اور اس کے اقسام آگے تھے. اس تیسرے سبق میں موضوع کی جو دوسری قسم ہے مرکب، اس کو پڑھیں گے. مرکب کہتے ہیں جڑنے کو، مرکب کہتے ہیں جڑی ہوئی چیز کو، اور جڑنا ایک سے زائد ہو تو ہی جڑنا کہا جاتا ہے. تو اس بات سے یہ ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ مرکب کے معنی آتے ہیں جڑنا، اور جڑنے کے لیے ایک سے زائد الفاظ کا ہونا ضروری ہے. یہی بات سمجھائی جا رہی ہے. دیکھیے، مرکب وہ بات ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے. جو لفظ دو یا دو سے زیادہ سے مل کر بنے اس کو مرکب کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا، جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر کوئی جملہ بنے اس کو مرکب کہتے ہیں. اب ایک بات یہ سمجھیے، اس جڑے ہوئے الفاظ سے ہم کو معنی مکمل طور پر سمجھ میں آتے ہیں یا نہیں؟ اگر معنی سمجھ میں آتے ہیں تو مرکب مفید، فائدہ دینے والا مرکب. اس جڑے ہوئے جملوں سے بات مکمل سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید. جڑے ہوئے تو ہے لیکن ان سے کوئی بات مکمل سمجھ میں نہیں آ رہی، فائدہ نہیں ہو رہا، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید، فائدہ نہ دینے والا مرکب. ٹھیک، بات شاید سمجھ میں آ چکی ہے. مرکب وہ بات ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے، کم سے کم 2 کا ہونا ضروری ہے. مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. شاید آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سمجھایا تھا. مرکب مفید کس کو کہتے ہیں؟ وہ بات ہے جس سے سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو. مرکب مفید کہتے ہیں یعنی جب ہم کسی سے بات کریں مرکب جملے سے، اس کو اس بات سے کسی واقعے کی کوئی خبر معلوم ہو یا کسی بات کی طلب معلوم ہو، خواہش معلوم ہو، اس کو کہتے ہیں مرکب مفید. جیسے مثال کے طور پر یہاں مثال لکھی ہوئی دیکھیے، حسن حاضر. سب سے پہلے یہ سمجھیے مرکب ہے یا نہیں؟ یقیناً مرکب ہے. کیوں؟ مرکب کس کو کہتے ہیں؟ دو
या दो से ज्यादा अल्फाज हो। यहाँ पे दो अल्फाज है, देखिए, एक हसन और एक हाजिर, तो मुरक्कब हो गया। अच्छा, मुफीद है या नहीं वो देखेंगे। मुफीद के लिए क्या है, किसी वाक़े की खबर मालूम हो। अब इससे तर्जुमा देखिए, अब हसनुन हाजिरुन, हसन हाजिर है, इस मुरक्कब से हमको एक बात की खबर मालूम हो रही, वो क्या है कि हसन मौजूद है, इस बात की खबर मालूम हो रही। और जिस मुरक्कब से किसी वाक़े की या किसी बात की खबर मालूम हो, उसको मुरक्कब मुफीद कहते हैं। तो ये मुरक्कब मुफीद हो गया। और एक मिसाल है, देखिए, इत्ति बिल मा, पानी लाओ। अब ये सबसे पहले ये देखिए कि ये मुरक्कब है या नहीं है। यकीनन ये मुरक्कब है, क्योंकि मुरक्कब किसको कहते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा अल्फाज हो। यहाँ पे देखिए, इत्ति भी है, बी भी है, और अलमा है, तीन हो गया यहाँ पे। इत्ति बिल मा, पानी लाओ। तो खैर ये मुरक्कब हो गया। अच्छा, इस मुरक्कब से बात समझ में आ रही है या नहीं, मुरक्कब मुफीद है या नहीं है, इससे फायदा हो रहा है या नहीं, इससे फायदा हो रहा है। क्यों फायदा हो रहा है, इस वजह से कि इसके सुनने से सामने वाले को एक ख्वाहिश मालूम हो रही है कि मुझे पानी लाने का हुक्म दिया जा रहा है। इत्ति बिल मा, पानी लाओ, तो किसी चीज की तलब की जा रही है, तो इसको भी मुरक्कब मुफीद कहते हैं। देखिए, पहले जुमले से सामे को हसन के मौजूद होने की इत्तला दी जा रही है, और दूसरे जुमले से पानी की ख्वाहिश मालूम होती है। तो जिस चीज में, जिस मुरक्कब से किसी वाक़े की खबर मालूम हो या किसी चीज की तलब मालूम हो, उसको मुरक्कब मुफीद कहते हैं। बस ये समझिए कि उससे कोई बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ रही हो, तो उसको मुरक्कब मुफीद कहते हैं। और अगर किसी मुरक्कब से बात मुकम्मल समझ में नहीं आ रही है, तो उसको कहते हैं मुरक्कब गैर मुफीद। जैसे यहां पे देखिए, मुरक्कब गैर मुफीद वो बात है जिससे सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम ना हो। जैसे कलम सईद, सईद का पेन। क्या है सईद का पेन, किसी चीज की बात की इत्तला हो रही, खबर दी जा रही, नहीं, बस इतना मालूम हो रहा है कि सईद का पेन। क्या सईद का पेन गुम हो गया, सईद का पेन अच्छा है, सईद का पेन खराब है, क्या बोलना चाह रहे हैं, कोई चीज मालूम नहीं हो रही, फायदा मंद जुमला नहीं है ये। इस वजह से इसको कहते हैं मुरक्कब गैर मुफीद। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, आगे देखिए, जुमला दो तरह का होता है, जुमला खबरिया और जुमला इंशाया। एक चीज हम यहां भूल गए थे, देखिए, फायदा, मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं। जो मुरक्कब मुफीद हो, जिससे फायदा हो, उस मुरक्कब को मुरक्कब मुफीद कहते हैं। ठीक है, सॉरी, उस मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं। और आगे चल के इन्हीं दोनों के नाम से याद किया जाएगा। मुरक्कब मुफीद बार बार जिक्र नहीं किया जाएगा, बल्कि मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम से ही याद किया जाएगा। इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे आगे बात बताई जा रही थी कि जुमला दो तरह का होता है, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। ठीक है, जुमला दो तरह का होता है, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। यहाँ पे देखिए, जुमला खबरिया की तारीफ है, और यहाँ देखिए जुमला इंशाइया की तारीफ है। हम दो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जुमला खबरिया वो जुमला है जिसके बोलने वाले को सच्चा या झूठा कह सके। और ये दो किस्म पर है, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। ठीक, उसके बाद ये देखिए, भी ये इंशाल्लाह समझना होगा अभी। जुमला इंशाइया वो जुमला है जिसके बोलने वाले को सच्चा या झूठा न कह सके। जैसे इति बिल्मा, मुरक्कब मुफीद का दो नाम है, एक है जुमला खबरिया और एक है जुमला और कलाम। मुरक्कब मुफीद के दो नाम है, जुमला और कलाम। अब फिर यहाँ बता रहे हैं जुमला की दो किस्में हैं, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया यहाँ पे है और जुमला इंशाइया ये है। जुमला खबरिया किसको कहते हैं, जुमला खबरिया ऐसे जुमले को कहते हैं, ऐसे सेंटेंस को कहते हैं
जिसके बोलने वाले को सच्चा या झूठा कह सके। जिसके बोलने वाले को सच्चा या झूठा कह सके, ऐसे जुमले को जुमले खबरिया कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स कहे, उस्ताद पढ़ा रहा है, उस्ताद पढ़ा रहा है। ये सेंटेंस, ये जुमला ऐसा है कि इसके कहने वाले को हम सच्चा और झूठा कह सकते हैं। हाँ, हो सकता है इन्हें सच बोल रहा, और ये भी हो सकता है कि झूठ बोल रहा। दोनों चीजों का इम्कान है। जिस जुमले में दोनों चीजों के इम्कानात हो, सच का और झूठ का, ऐसे जुमले को जुमले खबरिया कहते हैं, क्योंकि खबर में दोनों चीजों का एहतमाल है। ठीक। और एक जुमला इंशाइया। जुमले इंशाइया ऐसे जुमले को कहते हैं जिसके बोलने वाले को सच्चा या झूठा ना कह सके। जैसे यहां पे मिसाल है, इतिबिल मा। कोई कहे इतिबिल मा, पानी लाओ। अब इसमें सच और झूठ का तो एहतमाल ही नहीं है। इस जुमले में सच और झूठ का इम्कान ही नहीं है, क्योंकि इस जुमले में पानी लाओ हुक्म दिया जा रहा है, तलब किया जा रहा है, ख्वाहिश की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। जिस चीज में रिक्वेस्ट हो, ख्वाहिश हो, तलब हो, हुक्म हो, उसमें झूठ और सच, सच और झूठ का एहतमाल नहीं रहता। खबर के अंदर सच और झूठ का एहतमाल रहता है। शायद आपको बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। तो देखिए, जुमला खबरिया में सच और झूठ का इम्कान है। अब फिर यहां पे बता रहे हैं, जुमला खबरिया की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। एक बात समझिए, जुमला कहते हैं सेंटेंस को जिस सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड इस्म हो, जिस जुमले का शुरू का वर्ड इस्म हो, उसको जुमले इस्मिया कहते हैं। और जिस जुमले का शुरू का वर्ड फेल हो, उसको जुमले फेलिया कहते हैं। आसान सी मिसाल है, अगर जुमला शुरू हो रहा है इस्म से, जुमले इस्मिया। और अगर जुमला शुरू हो रहा है फेल से, यानी वर्ब से, तो उसको कहते हैं जुमले फेलिया। जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसका पहला जुज इस्म हो और दूसरा जुज खा इस्म हो या फेल हो। जैसे जैदुन खामा, और जैदुन खाइमुन, और जैदुन खामा। ये दो मिसालों में, पहली मिसाल में जैद इस्म है और दूसरी मिसाल में भी जैद इस्म है। तो ये जुमला भी इस्म से शुरू हो रहा और ये जुमला भी इस्म से शुरू हो रहा, तो इसको कहते हैं जुमला इस्मिया। और एक है दूसरी किस्म जुमले फेलिया, वो जुमला है जिसका पहला जुज फेल हो। जैसे खामा जैदुन है, तो ये भी जुमला, लेकिन इस जुमले का पहला वर्ड फेल है, इस वजह से इसको कहेंगे जुमला फेलिया। शायद बात समझ में आ चुकी है। अच्छी तरह हमको जहन नशीन करना चाहिए, जो जुमला इस्म से शुरू हो उसको जुमले इस्मिया कहते हैं, और जो जुमला फेल से शुरू हो उसको जुमले फेलिया कहते हैं। ये बात जहन में रखें। फेल ये उर्दू का फेल नहीं है, अरबी का फेल, वर्ब को कहते हैं, वर्ब को कहते हैं। फेल माने एक्शन, ये आइन के साथ है, देखिए फेल। मुरक्कब गैर मुफीद की, फिर आप आ जाइए, मुरक्कब की दो किस्में पढ़े थे हम, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद उस मुरक्कब को कहते हैं जिससे कोई बात समझ में आए, जिसमें किसी चीज, किसी वाक़े की खबर हो या किसी चीज की तलब हो, उसको कहते हैं मुरक्कब मुफीद। और दूसरा जुमला, हम ये दूसरा मुरक्कब की दूसरी किस्म ये पढ़े थे, जिसमें किसी वाक़े की खबर भी ना हो और किसी चीज की तलब भी ना हो, उसको कहते हैं मुरक्कब गैर मुफीद। अब यहाँ पे बता रहे हैं मुरक्कब गैर मुफीद की भी चंद किस्में हैं। इनमें से दो ये है, नंबर एक मुरक्कब इजाफी, जिसका पहला जुज मुजाफ और दूसरा जुज मुजाफ इले हो। जैसे किताबु खासिम। दूसरी किस्म मुरक्कब तौसीफी, जिसका पहला जुज मौसूफ और दूसरा सिफत हो। जैसे सौबुन जमील। तो ये था आपका तीसरा सबक। अच्छा, ये मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी की दोनों दोनों की मुस्तकिल एक सबक आएगा इंशाल्लाह। आगे हम वहां पे इसको आसानी से
समझ सकते हैं कि मुरक्कब इजाफी किसको कहते हैं और मुरक्कब तौसीफी किसको कहते हैं। तो ये था आपका तीसरा सबक, जो शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। और यहाँ पे सवालात भी देखे, अगर आप ये सवालात हल कर लें तो इंशाअल्लाह आपको समझने में और ज्यादा आसानी होगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा ये सवालात समझिए और इसके आंसर भी लिखिए आप। अगर आपको मौका हो तो इसी वीडियो के कमेंट में इसके जवाबात लिखिए, इंशाल्लाह मैं खुद करेक्शन भी करूंगा। मुरक्कब की तारीफ करते हुए उसके अक़साम की मुकम्मल वजाहत करें कि मुरक्कब की कितनी किस्में। सबसे पहले मुरक्कब की तारीफ लिखिए, उसके बाद उसके अक़साम और उसकी वजाहत। सवाल नंबर 2, जुमले की तारीफ करते हुए बताइए कि उसकी कितनी किस्में हैं। जुमला किसको कहते हैं, सबसे पहले इसकी तारीफ और फिर यह बताना है कि उसकी कितनी किस्में हैं। नंबर 3, जुमला खबरिया और जुमले इंशाइया की मुकम्मल वजाहत करते हुए बताइए कि ये दोनों किसकी किस्में हैं। सवाल नंबर 4, मुरक्कब गैर मुफीद की कितनी किस्में हैं और वो क्या है। ये थे आपके सवालात। इन सवालात से भी आपको पूरा लेसन समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। फिर एक मर्तबा आपसे वजाहत कर दूं कि ये आसान ना हो, जिल अव्वल के असबाक है और पूरे लेसन्स के वीडियोस की लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगी। आप पूरे वीडियोस देखें, इंशाल्लाह आपको समझने में आसानी होगी। और जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो इंशाल्लाह आपको कुरान पाक पढ़ने में भी आसानी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।